Hello class, how are you? Good morning. Good morning, ma'am. Okay, I'm going to asking you some question. What is light? Light is a form of energy which gives us a sensation of sight. Very good. Light is a form of energy which give us a sensation of sight. Now, another question is what are the type of lenses? Yes, ma'am. Convex lens and concave lens. Very good. It's very true. Convex lens and concave lens. Now the question is, what is eye? Ma'am, eye is a sense organ which enables us to see. Very good, very good. It's very true. Eye is a natural क्या है सेंस ऑर्गन है नेचुरल डिवाइस ऑफ साइट है जो कि हमें गिव्स अस द सेंसेशन टू सी ओके देन हाउ कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट Yes, ma'am. By the principles of reflection and refraction. very good we can enable to see any object by the principle of reflection and refraction when the something is reflected to our eyes we can see it अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है तो कैसे दिखाई देती है क्योंकि कुछ उस पर लाइट पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज में है तो हमको सेंसेशन मिलती है कि वो है या फिर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में क्या है कि जब कोई चीज़ हमारी आईज पे पड़ती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है और हमारी रेटिना पे उसकी इमेज बन जाती है और वो हमें वो चीज़ दिखाई देने लगती है नाउ what are the main parts of eyes? Ma'am, I don't know. Okay students, now we are going to study about human eye. Now we will define the human eye. Human eye is the most sensitive and valuable sense organ. It is gives us the sensation of sight, and the human eye is the natural optical device. It is work on the principle of refraction and it is work on the principle of refraction and where the image is formed on the retina and retina is where is the screen where image is formed. Retina is made up of rods and cone. There are millions of about to 125 millions of rods and cone on the retina, which gives us the sensation of sight, which help in the make the image on the retina. Now the rods are the sensitive to the dim color light and cones are the sensitive to bright color light and they enable us to see the color also. Now we will explain you the structure of eye through the help of this model. You can see it, the human eye model. Now this is the human eye, structure of human eye, where the human eye is made up of the three layer of the color. The name of the, I will explain you the name is, it is sclera, then choroid, then retina. The three layers of the human eye. So human eye is made up of the three layers. Now the screen of the eye is the cornea. This is a cornea level which is so as a eye in the human body. The cornea, then it is here is the aqueous humor विस्कस सॉल्यूशन है एक जो कि हमारे रेटिन कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या करता है उसको न्यूट्रिशन देता है लेंस को आई मसल्स को न्यूट्रिशन देता है दैट इज एक्वस ह्यूमर देन इसके बाद आता है लेंस आता है लेंस के पहले बीच में हमारा क्या होता है आइरिस होता है और एक प्यूपिल होता है आइरिस और एक प्यूपिल होता है डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको कवर किए हुए एक आइरिस होता है ठीक है द प्यूपिल इज द होल विच कवर द विच रेगुलेट द लाइट एंटरिंग अवर आईज विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट एंड उसके बाद पीछे एक लेंस होता है लेंस कौन सा लेंस है ये इट इज ए
नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा सारे हमारे जो भी हमारे प्यूपिल के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज जा रही है वो उसे कन्वर्ज करेगा ऑन द रेटिना। हेयर द इमेज फॉर्म। द इमेज कैसी होगी इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड डिमिनिश इमेज होगी जो कि बहुत ही छोटी साइज में होगी, विच इज कन्वेड बाय द ऑप्टिकल नर्व टू द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑक्सीपिटल पार्ट होता है ब्रेन का जो कि हमारी विजुअल सेंसेशन को पहुंचाता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन यू द होल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। दीज आर द, देयर इज ए क्रिस्टलाइन लेंस, नाउ एक्वस ह्यूमर एंड द प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया। ये सरफेस हमारी जो होती है वो कॉर्निया है। और जो थ्री लेयर और ये हमारी जो स्ट्रक्चर जो हम दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड सीलियरी बॉडी। ये क्या करती है, हमारे लेंस के साइज की थिकनेस को मेंटेन करती है। जब हम कोई चीज, सीलियरी बॉडी आर द मस्कुलर डायफ्राम दैट मेंटेन द साइज ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू विच आप लोगों ने सुना होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन इज कंट्रोल्ड बाय दिस डायफ्राम, यानी सीलियरी बॉडी। जब कोई चीज हम लोग पास की देखते हैं तो हमारी चीज, हमें वो लेंस जो है हमारा थिक हो जाएगा और थिक होने के कारण उसकी फोकस लेंथ मेंटेन हो जाएगी। और जब हम कोई चीज दूर की देखेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो हमारा फोकस लेंथ जो है वो, हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाएगा और हमें वो उसकी फोकस एडजस्ट हो जाएगी। दिस पावर ऑफ एकोमोडेशन इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। और ये हमारा एक आर्टिफिशियल लेंस में नहीं हो सकता, ये नेचुरल पावर है सीलियरी मसल्स के कारण, विच मेक्स अ डायफ्राम टू चेंज द thickness of the lens. तो दिस इज सीलियरी मसल्स। देन रेटिना, ये अंदर की जो थिक लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज रेटिना। उसके बाद हमने आपको बताई कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर क्या करती है, उसके अंदर एक छोटे सा क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन होता है जो लाइट की, जो हमारी आई के आई बाउल को मेंटेन रखती है। इसके पीछे होता है विट्रस ह्यूमर। Vitreous humor is also a viscous solution that maintain the backward portion. लेंस एंड रेटिना के बीच का मेंटेनेंस जो होता है वो विट्रस ह्यूमर से हमारा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंसिटिव नर्व्स होती हैं जो कि हमारी आई, लाइट की, ऑब्जेक्ट की जो भी हमारी विजुअल सेंसेशंस हैं उनको नर्व के थ्रू और हमारी इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में, फोर ब्रेन के सेरिब्रम में पहुंचाती है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ द आईज। द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस एंड सीलियरी मसल्स, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इज कॉल्ड blind spot, where there is no vision, there is no sensation of sight and there is no vision. तो ऑप्टिकल नर्व जो है हमारी, वो हमारी जहाँ से रेटिना से कनेक्ट हो रही है, that is called the blind spot. This question is asked everywhere. What is the blind spot of the eye? Now the main parts are cornea, iris, pupil, eye lens, ciliary muscle and retina. Next है optic nerve and there are two type of liquid, aqueous humor and vitreous humor. Vitreous humor are the two liquids present in the eyeball. Okay. Now we will start with the cornea. It is a transparent membrane which protect the eye from the dust. Cornea is the transparent membrane. Here we have shown it. Cornea is a transparent membrane which protect the eye from the dust. So here is a cornea. Now this part is cornea. Now iris, muscular diaphragm which change the size of pupil. Muscular diaphragm. Here is a muscular diaphragm which change the size of pupil. That is iris. We can show the iris. This is the structure of eye, and here is a muscular diaphragm. This part is called iris, and this part
that is called pupil of the eyes. Okay, so muscular diaphragm which change the size of the pupil, it gives the color to the eyes, it also gives the color to the eye. We have seen कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, उनका आइरिस एक्चुअली में नीला होता है, और प्यूपिल भी जो होता है वो उनका ब्राउन होता है, तो हमको उनकी आंखें नीली दिखती है. तो इट आल्सो प्रोवाइड द गिव द कलर टू द आई. ओके, नाउ वी विल कम ऑन द pupil. Pupil is an opening. Actually, it is an opening. Pupil is an opening. It regulates and control the amount of light entering the eye. It actually regulate and control the amount of light entering in the eye. And behind the pupil and iris, इन दोनों के पीछे में eye lens है. Behind the pupil and iris, there is a eye lens. Okay? Eye lens क्या करता है? सारी अमाउंट ऑफ लाइट जो गई उसको उसने कन्वर्ट किया ऑन द रेटिना एंड गिव द इन्वर्टेड, डिमिनिश एंड क्या नाम है, इमेज एक हमारी बना दी इन्वर्टेड, और हमारी क्या नाम है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज हमारी बना दी किस पे, रेटिना पे, जो हमें जिसकी हमें इम्पल्सिस गई किससे, ऑप्टिक नर्व से हमारी ब्रेन के पास, फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में गई, और वहां पर ऑक्सीपिटल लोब से हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाके वो सीधी हो जाती है इमेज, और हमें वो सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलती है और उसका रिस्पॉन्ड आ जाता है. हमारे वॉइस से आंसर देना है, हमने कैसी चीज़ देखी, कोई हमने चीज़ बहुत सुंदर देखी, ओ इट्स ब्यूटीफुल मुंह से निकला, दैट इज ए वे. तो हमारा इतना फास्ट एक्शन है उस पर. तो pupil is a opening. It regulates and controls the amount of light entering the eye. Behind the pupil and iris, there is a eye lens. Now the eye lens is a convex lens. Eye lens क्या है? एक natural convex lens है, which converts the light ray and form the real, inverted and diminished image ऑन द रेटिना. कहाँ बनाता है आई लेंस हमारी इमेज? रेटिना पे बनाता है. और वो कैसी इमेज होती है? हमारी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज होती है. डिमिनिश उस कंडीशन में नाउ द सीलियरी बॉडी मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ आई लेंस. ये हमारी आई लेंस का कर्वेचर जो है उसे मॉडिफाई करती हैं, मतलब पावर ऑफ एक्मोडेशन में हेल्प करती हैं. एंड चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस ऑल्सो. चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस, मतलब अगर हम पास की चीज देखते हैं तो हमारी थिकनेस, हमारा लेंस थिक हो जाएगा. अगर हम दूर की चीज देखते हैं तो हमारा लेंस ऑटोमेटिकली थिन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सीलियरी बॉडी. ठीक है, अब आया रेटिना. रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज फॉर्म. रेटिना ही वो स्क्रीन है जहां इमेज फॉर्म हो रही है. एंड इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई. इट इज अ लाइट सेंसिटिव बिकॉज ऑफ रॉड्स एंड कोन. लाइट सेंसिटिव, वहां पर सेल है, रॉड और कोन्स है रेटिना में, उसी से बनी है. रेटिना इज मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन. मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन वहां पर अवेलेबल होती हैं, जो कि हमें कलर की सेंसेशन देती हैं, हमारी लाइट को मेंटेन करती हैं. डिम लाइट के लिए वहां पर हमारे अंदर एक पावर डेवलप हो जाती है. हमारी आई जो लेंस है वो बड़े हो जाते हैं, और जहाँ लाइट तेज होती है, जैसे हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारे आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जो कि हमारी डिम लाइट को भी मेंटेन करते हैं. तो अब क्या है? स्क्रीन. रेटिना इज ए स्क्रीन वेयर द इमेज फॉर्म इन. इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई दैट made up of the rods and cone. Now the optic nerve take the retina or क्या नाम है, take the signal from the eye to the brain. Optic nerve takes the signal from the eye to brain in the form of impulses. और वहाँ ऊपर जाके हमारे जो विजुअल इम्पल्सेस है वो चेंज हो जाएंगी ऑक्सीपिटल लोब में, और हमारी वहाँ पर सारी इमेजेस सीधी हो जाएंगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचेगी. नाउ अब हमने एक्सप्लेन क्या नहीं किया, व्हाट आर द रॉड एंड कोन्स, है ना. रॉड्स एंड कोन अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया. तो रॉड्स आर द जो सेल्स है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, आर द सेंसिटिव फॉर द डिम लाइट. और कोन्स आर द सेल्स विच
क्या नाम है, हमारी सेंसिटिव है, विच सेंसिटिव टूवर्ड्स द ब्राइट लाइट एंड इनेबल अस टू सी द कलर। ओके, कलर सेंसिटिव है और ब्राइट लाइट को भी वो मेंटेन करती है कि ब्राइट लाइट है तो हम उसकी चकाचौंध से ऐसा ना हो कि हम चीज़ें रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो ब्राइट लाइट और कलर को कोन्स एक्सप्लेन करती हैं हमारी, और रॉड्स जो है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है। नाउ the two parts are remains, these are aqueous humor and vitreous humor। aqueous humor क्या है? aqueous humor जो है it is a viscous liquid है filled between the eyelids and cornea। जो हमारे कॉर्निया और आइलेंस के बीच में कॉर्निया और आइलेंस के बीच में भरा होता है, वो हमारा हुआ aqueous humor। तो it provide the nutrient to the आई टिश्यूज, और ये हमारे आई टिश्यूज को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। विट्रस ह्यूमर क्या हुआ? विस्कस सॉल्यूशन है, ये भी एक बिल्कुल विस्कस लिक्विड है, फिल्ड बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, यानी बैक पार्ट, आई लेंस के बैक पार्ट में रेटिना से पहले विस्कस ह्यूमर होता है। इट सपोर्ट द बैक ऑफ द आईज, ये हमारी आंख के बैक पार्ट को सपोर्ट करेगा। एंड नाउ द मेन पॉइंट ऑफ द आई हुआ फॉर द नॉर्मल आई, फॉर पॉइंट क्या है? इट इज ए इंफिनिटी। नॉर्मल आई के लिए फॉर पॉइंट इंफिनिटी है, एंड नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, बिकॉज हमारी जो नॉर्मल आईज है उसका जो हमारा फोकस लेंथ है, फोकस लेंथ वो 25 सेंटीमीटर से कम पे जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारा जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट जो है वो हमारा है इंफिनिटी। नाउ व्हाई इट हैपेंड, इट अपीयर्स डार्क व्हेन वी कम इन द रूम आफ्टर द सनलाइट। जब हम सनलाइट से किसी और रूम में आते हैं तो हमें डार्क क्यों लगता है थोड़े समय के लिए? ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा? when we enter in the room, हाँ, when we enter in the room from the sunlight, तो हमें थोड़े समय के लिए हमें एक अंधेरा सा दिखाई देता है। क्यों देता है? ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ से लिया गया है और जो हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज द प्यूपिल ऑफ द आई, व्हाई इट अपीयर डार्क when we enter to a room from sunlight। हम जब सूरज की रोशनी से रूम में आते हैं तो हमें थोड़े समय के लिए अंधेरा सा क्यों दिखाई देता है? ये एक लाइफ रूटीन, जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है उससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों की उनकी प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा है आज तक, उस डेली रूटीन लाइफ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? इट इज़ बिकॉज द सनलाइट, इन द सनलाइट द प्यूपिल ऑफ द रेटिना इज स्मॉलर इन साइज, बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है और वो एक लिमिट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेंस हमारा। व्हेन वी एंटर इन अ रूम, तो हमारी जो लेंस है इट टेक्स few minutes to change the size, that enough light can enter in the eye to see something। तो हमें जब कोई चीज़ दिखाई दे उसमें enough light जब हमारी आँख में एंटर होगी तो रूम में लाइट जो है हमको बहुत कम मिलती है। उतनी छोटी लेंस से जो हमारा सनलाइट में एनफ हो रहा था, वही लेंस जब हमारा रूम में आते हैं इट विल नॉट गेट द एनफ लाइट। सो when we enter in the room, the eye lens take a few moments to change, to adjust the lens so that enough light can enter for the clear vision। Okay, then we will come to the eye defect। अब आई डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं हमारी आईज में? आईज के 3 तरह के डिफेक्ट हमारी आईज में होते हैं। एक होता है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। नाउ मायोपिया जो है वो हमारा क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या है? फॉर साइटेडनेस। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द एज, ये हमारा एज के कारण होता है।
तो अब हम लोग आ जाते हैं तो इसमें डिफेक्ट ऑफ द विजन में क्या है, मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन द ह्यूमन आई. There are 3 types of defect of vision. That is myopia जो है, मायोपिया है वो शॉर्ट साइटेडनेस है. मायोपिया में क्या होता है हमारा, मायोपिया में क्या होता है हमारा शॉर्ट साइटेडनेस है. इसमें होता है हमारा नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर रहता है और नियर पॉइंट जो है वो रहेगा हमारा 25 सेंटीमीटर, जो कि होता ही है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता. बट द फार पॉइंट गेट डिफेक्टेड. फार पॉइंट जो हमारा है वो हमारा वहां पर डिफेक्ट, देयर इज अ डिफेक्ट इन द फार पॉइंट. इन द फार पॉइंट. तो दूर की चीजें ज्यादा दिखाई नहीं देती. इसके कॉज क्या है, इसके मेन 2 कॉजेज होते हैं मायोपिया के. होती है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईज ऑफ द लेंस. क्या है हमारा डिफेक्ट हमने बनाए हुए हैं. देखिए मायोपिया में जो है नियर साइटेडनेस, इसमें 2 है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईज. आप ये देखेंगे, डायग्राम देखेंगे. एक्सेसिव कर्वेचर हो जाने के कारण क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो बिफोर द रेटिना बन जाती है, बिफोर द रेटिना बन जाएगी और हमारी इस वजह से हमको कोई भी चीज़ प्रॉपर दूर वाली दिखाई नहीं देगी. और इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारी इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. अगर हमारी इलोंगेशन हो गई है आई बॉल में, आई बॉल हमारी बड़ी हो गई है, तो भी हमारी जो इमेज है वो भी बिफोर रेटिना बन जाएगी और इससे हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी. दीज आर द 2 मेन कॉजेज ऑफ मायोपिया. तो मैं बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि कलर डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनता है, दिस इज द वे टू एक्सप्लेन. नाउ अब हम लोग इसको करेक्ट कैसे करेंगे. इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर वो लेंस यूज करेंगे. कॉनकेव लेंस को लगा लेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, हमारी पूरी इमेज को मैनेज कर देगा. क्या करेगा, हमारी इमेज को मैनेज कर देगा जो कि आ रही है, और हमारा जो हमारा इमेज है वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा. तो क्या है, फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स. तो कॉनकेव लेंस हमारा स्पेक्टिकल्स में यूज होता है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, ये हुआ हमारा ये हमारा था हाइपरमेट्रोपिया, हमारा हुआ फॉर साइटेडनेस हुआ. इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले रीजन इसका होता है फोकस, जो हमारा काज है मेन है, नियर पॉइंट हमारा डिफेक्टेड हो जाता है और फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी जो है वो मेंटेन रहता है. दूर की चीज़ हमें दिखाई देगी प्रॉपरली, लेकिन पास की चीज़ जब कोई हम पास में लेके आएंगे वो हम पढ़ नहीं पाएंगे. तो ये हुआ हमारा हाइपरमेट्रोपिया. इसको हम बोलते हैं फॉर साइटेडनेस, जो कि हमें दूर की चीज़ इसमें दिखाई दे रही है. तो इसमें क्या होगा, हमारा सबसे पहले नियर पॉइंट डिफेक्टिव हो जाएगा. फार पॉइंट कितना रहेगा, इनफाइनिटी रहेगा. इनफाइनिटी रहेगा, इन्फिनिटी है हमारा.
ये हमारा है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट हमारा डिफेक्टेड हो गया। डिफेक्टेड होने की वजह से हमको पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसके लिए हमारा क्या होगा, हमारा जो इस कंडीशन में क्या होगा, आई लेंस जो है हमारा वो वीक हो गया है, इस वजह से ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारी जो आई की इमेज है वो हमारी रेटिना से पीछे बनेगी, रेटिना के भी आगे जाके इमेज बनेगी, इसलिए हमें पास की चीज जो है वो दिखाई नहीं देगी और लेकिन दूर की चीज हमें दिखाई दी जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो रीजन ये हुआ हमारा, इसका कॉज है एक्सेस आई लेंस इज वीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉज है आई, जो हमारी आई है, आईज आर टू शॉर्ट हो जाएगी, यानी हमारी पहले क्या हो रहा था, इलोंगेशन हो रहा था ना मायोपिया में आई का, आई बॉल का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारी आई बॉल जो है अगर वो जरूरत से ज़्यादा छोटी है तो हमारी क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और उस कंडीशन में हमारी आई बॉल जो है, आईज आर टू शॉर्ट, अगर आई का ये पूरा जो बॉल है, गोला है, ये अगर छोटा हो गया है तो भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, अगर आई का गोला जो है वो बड़ा हो चुका है, जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम लोगों को मायोपिया हो सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें दो हम लोगों ने, मैंने डायग्राम लिए हुए हैं। पहला डायग्राम ये शो करता है कि हमारा नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड है आई का जो हमारा है वो नियर पॉइंट डिफेक्टेड है, तो फार पॉइंट तो हमारा ठीक आएगा। जब नियर पॉइंट डिफेक्टेड हो जाएगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, हमारी नियर पॉइंट डिफेक्टिव आई का हमारा इधर चला जाएगा, उस वजह से हमको चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, यूज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, वो कन्वर्ट करके इमेज को हमारी रेटिना से जो पीछे बन रही थी उसको रेटिना पे बनाएगा। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होगा, हमारा करेक्शन फॉर द हाइपरमेट्रोपिया क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमारा मायोपिया क्या था, कॉनकेव लेंस था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेस बायोपिया पे। थर्ड है हमारा प्रेस बायोपिया। थर्ड है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ये हमारा एक्चुअली में एज डिफेक्ट के कारण होता है। एज हमारी जब अपर एज लिमिट क्रॉस हो जाती है आफ्टर 40, तो हम लोगों को प्रेस बायोपिया ह्यूमन में देखा जाता है। इसमें भी हमारी नियर साइटेडनेस में प्रॉब्लम होती है, जो पास की जो है, जो हमारी पास की चीज़ें हैं, 25 सेंटीमीटर जो हमारा नियर पॉइंट है वो डिफेक्ट हो जाता है। और इसके साथ में अगर किसी को मायोपिया है तो उसको बाइफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर का लेंस होगा कैसा हमारा, कॉनकेव होगा, और नीचे का हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो ये दोनों तरीके का बाइफोकल लेंस यूज होता है। उस समय हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रेस बायोपिया में क्या होगा कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स हो जाएगा, तो पावर ऑफ एक्मोडेशन कम हो जाती है। क्या होता है, सीलियरी मसल्स जो है वो ग्रेजुअली वीक हो जाएंगे, आई लेंस हमारा हार्डन हो जाएगा, उस वजह से चीज़ जब हमारे पास आएगी तो उसकी हमारा एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस लेंथ जो होता था शुरुआत से वो हमारा कम हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में हम लोग को पास की चीज दिखाई नहीं देगी क्लियरली ना। दिस इज द प्रेस बायोपिया। तो लेंस इज हार्डेड बाय द एज एंड अनेबल टू चेंज द शेप, अनेबल टू द चेंज द शेप एंड थिकनेस ऑफ द लेंस। तो हमारी क्या है, सीलियरी मसल जो होगी, सीलियरी मसल्स जो है, जो कि एज के साथ में, एज डिफेक्ट के कारण बिकम वीक ड्यू टू एज इफेक्ट।
हो जाएंगी और हमको दिखाई नहीं देगा, तो डिमिनिश हो जाएगी। क्या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस भी डिमिनिश हो जाएगी, तो उसके कारण हमारे पावर ऑफ एकोमोडेशन न होने के कारण प्रेस बायोपिया हो जाता है। इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। बाईफोकल लेंथ में ऊपर का लेंस जो है वो होगा कॉन्वेक्स और नीचे का कॉन्केव यूज हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम बाईफोकल लेंथ यूज करके इसको हम करेक्शन ऑफ द विजन कर सकते हैं और आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो तीनों तरह के आई डिफेक्ट को हम लोग लेंस के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? इट इज ए पावर टू एडजस्ट द आई लेंस मतलब विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल, to adjust the focus length of the eye lens to see an object, it is called the accommodation of क्या हुआ लेंस, आई लेंस, accommodation of eye। अब नेक्स्ट चीज हमारी आती है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में कैटरेक्ट जो है कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी और मिल्की हो जाता है और उसके कारण बिल्कुल भी या तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है और पार्शियली लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैटरेक्ट वाले पेशेंट का लेंस को रिमूव करके वहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का एक लेंस लगा देते हैं, जिसके कारण प्रॉपर दिखाई देने लगता है। तो ये कंडीशन हमारी होती है कैटरेक्ट का बिकॉज ऑफ द एजिंग। तो क्या होगा, कैटरेक्ट इज द क्या है कंडीशन इन विच क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द प्यूपिल ऑफ द ओल्ड एज प्यूपिल में बिकम मिल्की और क्लाउडी। तो क्रिस्टलाइन lenses of the aged pupil become milky and cloudy, so the vision is partially low हो जाएगी या हमारी टोटली विजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कई लोगों की। और उस कंडीशन को खत्म करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि डॉक्टर्स उस लेंस को रिमूव करके नया प्लास्टिक लेंस यूज करते हैं। दिस इज द मेन way to remove the cataract or maintain the eyes। तो इसमें क्या होगा, लेंस बिकम cloudy और milky। So remove the lens and place a artificial plastic lens। This is a cataract। Now recapitulation करते हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। These are recapitulation में define the human eye। तो human eye is the most valuable and sensitive organ। It is a normal natural device। sensitive sense organ है हमारा, natural sense organ है which provide us the sensation of sight। और हम लोगों ने इसे पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोग इसे लिखेंगे आंसर इसका प्रॉपरली। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है? कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, सीलियरी मसल्स, और उसके बाद में हमारी 3 लेयर है आई की, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। वो उसके बाद में एक बचता है हमारा, वो होता है हमारा
वो हमारा जो हमारा पॉइंट है कौन सा है, ब्लाइंड स्पॉट बताया था आपको है, वो कौन सा है हमारा पॉइंट, वो वाला हमारा एक्सप्लेन हमें फाइनल कर लेना है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये हमें एक्सप्लेन करने हैं, ये हमारे पार्ट में ही आएंगे। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये भी हमारे पार्ट में ही आते हैं, तो हमें उसे भी एक्सप्लेन करना है। नाउ हम लोग आते हैं व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। तो फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज इंफिनिटी और नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो हम लोगों ने अभी अभी एक्सप्लेन किया था 3 डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं विच कैन बी करेक्टेड बाय द लेंसेज। तो पहला कौन सा है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देन प्रेसबायोपिया। these three are the defect of vision. Now आएंगे व्हाट इज द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। तो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पावर ऑफ एक्कोमोडेशन है एबिलिटी टू चेंज द आईलेंस, thickness of the eyelens या focus length of the eyelens according to the need of the visibility of the object. Ability to change the thickness and focus length of the eyelens with the help of ciliary muscle is called power of accommodation. ये हमारी एक स्पेशल पावर है ह्यूमन आई की। नेक्स्ट हम लोग, अब हमारा रिकैप्चुलेशन कंप्लीट है, अब हम लोग होमवर्क के लिए आएंगे। होमवर्क में अब हम लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क में आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो एक आई का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक आई का डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये हमारा आई का डायग्राम है जो मैंने मॉडल में बनाया हुआ है। आप लोग ऐसा ही एक आई का डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। और इसमें आप लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा एक क्रिस्टलाइन लेंस आएगा, उसके बाद में है एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, ये सारा पार्ट जो है वो कॉर्निया है। नाउ द सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल के बाद आएगा रेटिना और इसके अलावा हमने स्क्लेरा और कोराइड भी लिख ली है यहाँ पर। नाउ ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के बाद है विट्रस ह्यूमर है। और अब हम लोग आएंगे होमवर्क पे आएंगे। और होमवर्क में हम आपको बता रहे हैं ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना अपनी नोटबुक पर, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ उसके साथ में आपको बनाना है एक डायग्राम, आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट का भी बना लेना है, जो कि हमने आपको बताया था रेनबो बनाना है एक हमको है, उसके 7 कलर्स रहते हैं। नेक्स्ट है, और उसके बाद है ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा, draw a diagram of human eye or explain the part of human eye. सबको होमवर्क करना है और डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एक हमको बनाना है और एक हमको एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई हमको करना है और ये सबको करके आना है। और नाउ अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।